Hello student, welcome to English tutorials. This is Anuradha and today we will discuss the chapter The Tsunami, which is the second chapter of Honeydew book of English literature of standard 8. Student, this chapter contains 3 parts and in this video I will explain the first part, okay? And the chapter recounts a few incidents of bravery and quick thinking during the tsunami of 2004. And before going through the chapter, I would like to say that please subscribe my channel and also press bell icon so that you could get the notification of upcoming videos. Okay, so let's start the chapter. Students, before going through the chapter, we should know about the tsunami. Okay, so what is tsunami? So let's see the book. Here's something about tsunami. So let's read. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Okay, tsunami is a very large and powerful wave. The meaning of wave is तरंगे. Okay, सुनामी जो है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बड़ी बड़ी पावरफुल तरंगे जो होती हैं समुंदर में अर्थक्वेक के कारण जो पावरफुल तरंगे उठती है, दैट इज कॉल्ड सुनामी. एंड स्टूडेंट, देयर वाज अ डिजास्टर which came on 26 December 2004, that is a tsunami which hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Student, on 26 December 2004, there was a disaster came that hits Thailand and parts of India, such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को एक डिजास्टर आया था, दैट इज कॉल्ड अ सुनामी. ओके, सुनामी आया था जिसने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट यानी तमिलनाडु के समुद्री इलाके जो थे वहाँ पे तबाही मचाई थी. ठीक है, हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर you will read some stories of courage and survival during that tsunami. Okay, so let's and a question arises that did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. Student, क्या एनिमल्स जो है कि उन्हें ये पहले से पता था कि सुनामी आ रहा है, यानी क्या उन्हें आभास था कि सुनामी आएगा, आ रहा था एट दैट टाइम? और ये जो स्टोरी आप पढ़ोगे, इसमें कुछ स्टोरीज वो ये सजेस्ट करेंगे कि यस, एनिमल्स को पहले ही आभास हो गया था. सो लेट्स रीड the first part. In this video we will read the first part. Okay, these story are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Student, archipelago means a group of many islands and the surrounding sea. Okay, islands, बहुत सारे आइलैंड्स और जो सी के जो सराउंडिंग होते हैं एंड द सराउंडिंग सी. आइलैंड्स किसको कहते हैं? जो जिस सी से सराउंडेड है. ठीक है, बीच में है और चारों तरफ पानी और बीच में प्लेस है, तो उस स्थान को, मेनी आइलैंड्स के ग्रुप को आर्किपेलागो कहते हैं. ठीक है, एंड दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार. ये जो स्टोरी फर्स्ट पार्ट में है वहाँ अंडमान एंड निकोबार की स्टोरीज हैं इसमें. ठीक है, Ignatius was the manager of a cooperative society in Karchal. Okay, his wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Okay, Ignatius lived on the Karchal island in the Andaman.
with his family. Okay, and on December 26, 2004, his wife felt the tremors and woke him. दिसंबर 2004 को इग्निशियस, जो कि कर्चल में रहता था अपनी फैमिली के साथ, तो 26 दिसंबर 2004 को उसकी वाइफ ने फेल्ट किया कि कुछ हिल रहा है। ओके, इग्निशियस की वाइफ ने फेल्ट किया भूकंप के झटके, और फिर उसने इग्निशियस को उठाया 6 बजे। ओके, Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius uh, took his television set off its table. Okay, Ignatius ने टेलीविज़न को टेबल से नीचे उतार के रख दिया ग्राउंड पे, so that it would not fall, ताकि वो न गिरे और न टूटे। Then the family rushed out ऑफ द हाउस, और तब इग्निशियस की फैमिली घर से बाहर निकल गए। ओके, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, स्टूडेंट, ट्रेमर्स मीन्स भूकंप के झटके। जब भूकंप के झटके रुकते हैं, दे सॉ द सी राइजिंग, तो वो देखते हैं कि सी जो है वो बढ़ रहा है, उन लोग की तरफ आ रहा है। सी मीन्स समुंदर की जो तरंगे हैं, वेव्स है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनके तरफ आ रही थी। इन द कॉस एंड कन्फ्यूजन, ओके, इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. और कन्फ्यूज़न में वो ये देख के वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो गए, डर गए, और इस सिचुएशन में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड, उनके 2 बच्चे अपनी मम्मी के पापा यानी कि अपने नाना जी और मम्मी के ब्रदर यानी कि अपने मामा जी का हाथ पकड़ के दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर्स, और कुछ और इनके साथ भी इनके बच्चे थे, 3 अदर बच्चे जो थे वो इग्निशियस के साथ थे। तो फिर क्या होता है, इग्निशियस और उनकी वाइफ के साथ थे, और जो बच्चे अपने नाना जी और मामा जी के साथ चले गए थे, ही नेवर सॉ देम अगेन, फिर वो वापस कभी नहीं दिखे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, लिसन स्टूडेंट, और इनकी जो वाइफ थी वो भी बह गई। ठीक है, वो भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेर सेव्ड, और इन 3 दूसरे बच्चे जो थे इनके साथ थे, इग्निशियस के साथ थे। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, इग्निशियस के 2 बच्चे अपने नाना जी और मामा जी के साथ दूसरे डायरेक्शन में भागने लगे थे, और उनकी वाइफ जो है कि वो बह गई थी, और 3 बच्चे इग्निशियस के साथ थे जो कि बच गए। आफ्टर दैट संजीव वाज a policeman serving in the Karchal Island of the Nicobar group of islands. कर्चल आइलैंड में संजीव नाम का एक पुलिसमैन था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. ठीक है, किसी तरह भी संजीव जो है संजीव और इनके साथ इग्निशियस किसी तरह मैनेज किए और खुद को बचाएं, अपनी वाइफ को बचाएं, और जो बेबी डॉटर थी वेव में, हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, यानी अपने बेबी डॉटर को वेव्स से बचाएं। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। ठीक है, द गेस्ट हाउस कुक था जॉन, उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ जब संजीव सुने तो वो उन्हें बचाने के लिए he jumped into the water to rescue her. So Sanjeev, the policeman, jumped into the water to rescue the wife of John, but they were both swept away. लेकिन दोनों ही बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना भी अपने पेरेंट्स और 77 दूसरे पीपल के साथ बह गई, स्वेप्ट हो गई। सी spent 2 days floating in the sea.
होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, और जो मेघना थी वह वुडन डोर, सी में वुडन डोर को पकड़े हुए थी, और उसको पकड़ते हुए वो सी में 2 दिनों तक फ्लोट कर रही थी, मीन्स तैर रही थी। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they didn't see her. 11 times मेघना saw relief helicopters overhead. 11 टाइम मेघना जो है कि हेलीकॉप्टर्स को ऊपर ओवरहेड अपने ऊपर देखती थी कि हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड, मतलब कि रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ऐसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो फ्लड के दौरान पीपल को हेल्प करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उन्हें 11 टाइम्स मेघना ने देखा, बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वे हेलीकॉप्टर्स मेघना को नहीं देख सके। शी वॉज ब्राउड टू द शोर बाई अ वेव, और मेघना वेव तरंगों के द्वारा कहाँ पहुँच गई, किनारे पे पहुँच गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, और was found walking on the seashore in a days, और वो जो समंदर के किनारे पहुंची, ये भी एक अचंभे में डाल देने वाली बात थी, ठीक है। आफ्टर दैट अल्मस जावेद was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump, okay। अल्मस जावेद स्टूडेंट्स, ये सारी स्टोरी अंडमान निकोबार आइलैंड की है, ठीक है। अल्मस जावेद जो है कि 10 years ओल्ड है। शी वाज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में ये कार्मेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी। एंड वहीं पे उनकी जो पिता हैं उनका पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन Nancowry Island, okay. The family had gone there to celebrate Christmas. इनकी जो मम्मी का घर नैनकौरी आइलैंड में था, और इनकी जो फैमिली है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी वहाँ। When the tremors came early in the morning, जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भूकंप के झटके आए, द फैमिली वाज स्लीपिंग, उस दौरान फैमिली सो रही थी। Alma's father saw the sea water recede. अल्मस के पिता ने देखा कि सी वाटर जो है वो recede मीन्स मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, मतलब कि वो बैक आ रहा था, ठीक है। सी वाटर्स बैक आ रहे थे, वो देखे, अल्मस के फादर ने देखा। देन केम द फर्स्ट गेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, ठीक है। आफ्टर दैट जल्दी से देन केम द फर्स्ट गेंट, और तभी पहला वेव, फर्स्ट गेंट मीन्स लार्ज वेव तभी पहला आया और दोनों को बहा ले गया। अल्मस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर, और अल्मस की माँ और उसकी आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, वो कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़ के खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, बाहर खड़ी थी और बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वेयर वॉश्ड अवे, और वो तरंगे जो आई वो ट्री को जड़ के साथ ही निकाल दी, ठीक है। अपरूटेड द ट्री, जड़ के साथ ही ट्री को तोड़ दी और वे भी बह गए। अल्मस सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मस ने देखा कि एक वुड का लॉग जो है कि बह रहा है, तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उस पे चढ़ गई। देन सी फेंटेड व्हेन सी वोक, और तब वो देन सी फेंटेड मीन्स सेंसलेस हो जाना, बेहोश हो जाना, वो बेहोश हो गई। एंड व्हेन सी वोक अप शी वाज इन When she woke up, she was in hospital in कैमोटा, ठीक है। जब वो उठी तो कैमोटा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्राउड टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल्स डजंट want to talk about the incident with anyone. She is still
ट्रॉमेटिसाइज्ड। ओके, जो लिटिल गर्ल थी वो बिल्कुल भी किसी से इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करती है। वो नहीं करना चाहती इस इंसिडेंट के बारे में बात करना किसी से भी। शी वाज स्टिल ट्रॉमेटिसाइज्ड मीन्स वो अभी भी बहुत ही ट्रॉमेटिसाइज्ड मीन्स ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी आघात उसे पहुंच गया था, वो डिस्ट्रेस्ड थी। ओके student, this is the first part of the chapter, and after that there are some questions and you have to solve this. Okay, you have to answer these questions, and in the next video I will explain the second part. Okay, so students, thank you and keep learning.